Welcome back, students. So, our today's topic is Chapter 2 Polynomials Exercise 2.2. Today we will gonna solve Exercise 2.2 of Chapter 2 Polynomials Class 9th Mathematics. So, are you ready to reinforce yourself? Let us check. Okay. So, question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x cube plus 3 at x equal to 0, at x equal to minus 1 and at x equal to 2. So, let us find the value of this polynomial. We know that our polynomial can be written in the form of px. देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो we will denote it by px. px is equal to 5x minus 4x cube plus 3. Now, first we have to find the value of our polynomial at x equal to 0. x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 0 and we have to find the value of our polynomial. So, our polynomial is px is equal to 5x minus 4x cube plus 3. So, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 0. तो ये px है तो इट विल बिकम p0. 5x it means it will become 5 into 0. This is 4 into 0 cube plus 3. Okay. So p0 is equal to 5 into 0, 0. तो 0 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 0 का क्यूब 0 ही होता है प्लस 3. So p0 is equal to 0 minus 0 plus 3. That is p0 is equal to 3. And this is our required solution. Okay. Let us move to the next part. x equal to minus 1. ओके अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे माइनस 1. ओके सो p माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस 3. जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने क्या पुट करा माइनस 1. नाउ 5 into minus 1 minus 5 plus into minus minus. Now minus 1 क्यूब. अब एक चीज़ ध्यान रखना, कोई सा भी नेगेटिव इंटीजर है ना, और उसकी अगर पावर ऑड है, कोई सा भी नेगेटिव इंटीजर है और उसकी पावर अगर ऑड है तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगी. तो देखो दिस इज़ अ नेगेटिव इंटीजर माइनस 1. और इसकी पावर क्या है 3 विच इज़ अ ऑड नंबर. ठीक है, तो इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा. अब देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1. अरे 3 1 है ना, 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1. तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1. सो माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1 प्लस 3 minus 5 minus 4 into minus 1 plus 4 plus 3. So p minus 1 is minus 5, 4 plus 3 7 and p minus 1 is 2. So this is our required solution. Okay, let us move to the third part. Third is we have to find the value of the polynomial at x equal to 2. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे. p2 is equal to 5 into 2 और we can write it like this है ना, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है. ठीक है, 5 into 2 4 into 2 क्यूब प्लस 3. ओके 5 2 ज़ा 10
-4, 2 cube, 2 cube, 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8 plus 3, 10, -4 into 8 -32 plus 3. लेट अस सोल्व दिस. पहले इसको सॉल्व करते हैं. 10 minus 32 minus 22 plus 3, minus 22 plus 3 is minus 22 plus 3 is minus 19. Okay, so this is our required solution. Now let us check whether our solutions are right or not. (2.2) question number 1. ओके बच्चों, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन है 5x माइनस 4x क्यूब ले लिया है, बट एक्चुअल क्वेश्चन इज माइनस 4x स्क्वायर. ओके, सो अपन एक बार इस क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल मान लो, ठीक है ना. ये जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा है ये अपन एग्जाम्पल मान लेते हैं. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1. हियर इज x स्क्वायर, बट mistakenly I have written 4x cube. So let us find the value of 5x minus 4x square plus 3. इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. अब तो हमें पता चल ही गया है कैसे फाइंड करना है. So first is x equal to 0. So p0 is 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. So p0 is 5 into 0, 0, 0 square is 0 plus 3. So p0 is 0 minus 0 plus 3. So our p0 is 0. Okay, this is first. Second, x equal to -1. So now p minus 1 is 5 into -1 minus 4 into -1 square plus 3. p minus 1, 5 into -1 -5. Now -1 into -1 is +1 plus 3. p minus 1 -5 -4 into 1 -4 plus 3. So p minus 1 is -5 -4 -9 plus 3. So p minus 1 is -6. Okay, let us find the third part. Kindly note it down. You have to find the value of polynomial at x equal to 2. So p2 is equal to 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. 5 2s are 10. 2 square means 4. 10. 4 4s are 16 plus 3. So 10 minus 16 is -6 plus 3. So P2 is -3. So this is our required solution. Okay. 3 minus 6 minus 3. Okay, let us move to the question number 2. Question number 2, find P0, P1 and P2 for the following polynomials.
some polynomials are given to us and we have to find p0, p1 and p2. So first polynomial is py is equal to y square माइनस वाई प्लस 1. हाँ, इस बार क्वेश्चन सही लिखा है. ओके, नाउ y square minus y plus 1, this is a polynomial in variable y, so it is written over here py. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? py. ओके, लेट अस सॉल्व. py is equal to y square minus y plus 1. पहले हमें क्या फाइंड करना है? p0. तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देते हैं. माइनस 0 प्लस 1, सो p0, 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 0 प्लस 1, सो p0 इज 1. ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना है? p1. लेट अस फाइंड p1. तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे, ठीक है ना. माइनस 1 प्लस 1. ओके, 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल ईच अदर, तो p1 इज इक्वल टू 1. थर्ड, वी हैव टू फाइंड p2. लेट अस फाइंड p2. जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे. माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1, तो p2 is 3. So this is our required solution. Now we will find for second polynomial. Our second polynomial is 2 plus t pt, 2 plus t plus 2t square minus t क्यूब. ओके, सही लिखा है. हाँ, क्या फाइंड करना है? p0. ओके, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, इसलिए यहाँ पर pt लिखा हुआ है. हाँ, नाउ वी विल फाइंड द p0. तो जहाँ जहाँ वेरिएबल t है वहाँ हम वैल्यू 0 पुट करते जाएंगे. तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. तो 2 प्लस 0 इज 2. अगेन 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0. तो 2 इंटू 0 इज अगेन 0 एंड 0 का क्यूब भी क्या होगा? 0. सो p0 इज 2. ओके, सेकेंड वी हैव टू फाइंड p1. तो जहाँ जहाँ वेरिएबल t है वहाँ वहाँ हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. तो 2 प्लस 1 इज 3, 1 स्क्वायर इज अगेन 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 क्यूब इज अगेन 1, 1 का क्यूब क्या होता है? 1. So it will become 3 plus 2 minus 1. 3 plus 2 is 5, 5 minus 1, that is 4. So this is P1. Now we have to find P2. Let us find P2. 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है. 2 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8. So it will become 2 into 4 8 and this is minus 8. Minus 8 plus 8 cancel each other. So P2 is equal to 4. So this is our required solution. Let us find the next one. Third. Px
is equal to x cube. Now this is our polynomial in x, variable x, so px is equal to x cube. Now we have to find p0, p1 and p2. Very simple, let us find p0. p0 means जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, 0 क्यूब, 0 का क्यूब तो क्या होता है बच्चों 0. So this is our required solution. Similarly we have to find p1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, x क्यूब मीन्स 1 क्यूब. सो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1. नाउ वी हैव टू फाइंड p2. p2 इज मीन्स 2 क्यूब, तो p2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट. आई होप यू हैड अंडरस्टैंड. px, fourth, px is equal to x plus 1, x minus 1 into x plus 1. Okay, so first we have to find p0. p0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट करेंगे, 0 minus 1 into 0 plus 1. So p0, 0 minus 1 is minus 1, 0 plus 1 is 1. Now minus 1 into 1 is minus 1. So this is our required solution. Okay, minus 1 into plus 1 is minus 1. Next we have to find p1. Okay, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, तो 0 इंटू 2 इज 0. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड p2. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2. 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, 2 plus 2 is 4. So 1 into 4 is 4. So this is our required solution. Okay, let us move to the question number 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial. Okay, first is px. Question first part is px is equal to 3x plus 1 comma x equal to minus 1 by 3. ना बच्चों, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, ये क्या इसका ज़ीरो है. वेरीफाई करना, पता करना है क्या ये ज़ीरो है. ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है. अगर उस ज़ीरो की वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर मिल जाती है हमें, ज़ीरो. अगर हमें एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो दिया हुआ है और अगर हम उस ज़ीरो को उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जहाँ जहाँ वेरिएबल है x है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू रखते हैं, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो.
तो यही अपन चेक करते हैं। अब हम देखेंगे क्या x की यह वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करने पर ये 0 के बराबर बन जाता है। लेट अस चेक। अगर ये 0 के बराबर बन गया तो ये इसका x की जो वैल्यू दी हुई है, दिस इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अगर आंसर हमें 0 नहीं मिलता है, मीन्स दिस 0 इज इनकरेक्ट। ओके, लेट अस फाइंड। सो हमें x इक्वल टू क्या दिया है, -1/3। लेट अस फाइंड p -1/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 पुट कर देंगे। 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ओके, घबराना नहीं है बच्चों, है ना, कोई भी ऐसी बात नहीं है। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अगर इसके नीचे कुछ नहीं दिया है मतलब इसके नीचे क्या है, 1। तो ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है ना कि ऐसा कुछ। जनरली मैंने देखा है जब बच्चे फ्रैक्शन आ जाता है, फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर फाइंड करना है या फ्रैक्शन का क्यूब फाइंड करना है या फ्रैक्शन से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है तो 1 है। ओके, लेट अस मल्टीप्लाई। 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 1। अब देखो ऊपर -3 है, नीचे 3 है, 3 से -3 कट जाएगा। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, आंसर विल बी माइनस। आंसर क्या मिलेगा, -1। -1 कटेगा ना, ये देखो -1 टाइम्स 1 टाइम्स कटेगा और आंसर क्या मिलेगा, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस -1। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें आंसर क्या मिला, 0। ठीक है, अगर ये 0 मिला है तो अपन लिख सकते हैं यस, x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, ऐसा हम आंसर में लिख देंगे। पर अब मैं यहाँ तक ही सॉल्व करूँगा ना, या आपको अपने आप से लिखना है अब। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज px is equal to 5x minus pi is x equal to 4/5. Okay, now x is equal to 4/5 है ना, x की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हम इस पोलिनोमियल में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या आंसर हमें 0 मिलता है। अगर 0 मिला तो गिवन वैल्यू हमारे पोलिनोमियल का 0 है, अगर 0 नहीं मिला तो वो 0 नहीं है। लेट अस फाइंड p 4/5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 4/5 माइनस पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है भाई, न्यूमरेटर इंटू, देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं, 1। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 5 इंटू 4 20 है ना, 1 इंटू 5 5 माइनस पाई 4 टाइम्स 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई क्या 0 के बराबर है, 4 में 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0। सो नो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ px। ओके, अभी भी लिख दिया है मैंने एक बार और, अब आप लोग खुद से नोट डाउन करना। Let us move to the third part. Px is equal to x square minus 1 and x is equal to 1 and minus 1. Okay. अभी देखो यहाँ पर उसने हमें 2 जीरोस दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। इसलिए हमें दोनों जीरोस को चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करेंगे 1 P1 है ना, तो जहाँ x है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1, तो P1 इज इक्वल टू 0। यस, ये तो हमारा 0 है।
Let us check another one, p minus 1. So minus 1 square minus 1. अच्छा, जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर का आप स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी फाइंड करते हो उस पर ब्रैकेट ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। सो माइनस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, अगेन प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ईच अदर, यस, ये दोनों हमारे जीरोस हैं। ओके, लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2। ओके, दो वैल्यूज दी हुई हैं, दोनों को हमें फाइंड करना है वेदर इट इज द जीरोस और नॉट। लेट अस फाइंड p माइनस 1 फर्स्ट। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम माइनस 1 पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने माइनस 1 पुट करा। अब इधर देखो, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3। देखो ना, माइनस 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 0, एंड दिस माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, तो 0 इंटू माइनस 3। नाउ 0 इंटू एनीथिंग, एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो देखो ये भी करेक्ट है, माइनस 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आंसर मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना, सो इट इज करेक्ट। लेट अस फाइंड p2। तो 2 प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 2 रखा, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 2 इज 0, अगेन 3 इंटू 0 is 0. So this is also our correct value. Fifth part, px is equal to x square and x is equal to 0. ओके है ना, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, 0 पे इसको चेक करना है। लेट अस फाइंड p0, p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, ठीक है। तो p0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, यस, इट इज अ करेक्ट वैल्यू। लेट अस फाइंड सिक्स्थ, px is equal to lx plus m, where x is equal to minus m by l. Okay, now we have to find the value of p minus m by l. तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम माइनस m by l को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। l यहाँ पर x है ना, माइनस m बाय l प्लस m। घबराना नहीं है बच्चों, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। तो l इंटू माइनस m प्लस इंटू माइनस माइनस l m, ओके, 1 इंटू l इज l प्लस m। देखो l से l कैंसिल, तो ये क्या बचा, माइनस m, है ना, माइनस m प्लस m, l से l कैंसिल हुआ ना, माइनस 1 मिला, माइनस 1 इंटू m माइनस m, ठीक है। तो माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m कैंसिल ईच अदर, आंसर विल बी 0. So yes, this is the correct value. Seventh, px is equal to 3x square minus 1. Now x is equal to minus 1 by root 3
and 2/√3. ओके, अगेन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी इरेशनल नंबर है ना, तो अब देख के घबराना नहीं है। हाँ, बिल्कुल जो हमने एल्गोरिथम जो प्रोसीजर फॉलो करा हम वही फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये पोलिनोमियल है ना, और इसकी डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो कौन सा पोलिनोमियल हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोस भी 2 होते हैं। तो इन दोनों जीरोस को हमें चेक करना है क्या ये इसके जीरोस हैं। सो लेट अस फर्स्ट चेक x इक्वल टू -1/√3, सो p -1/√3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/√3 पुट करेंगे, -1/√3 का स्क्वायर -1। ओके, अब बच्चों हमने देखा था अगर a/b का होल स्क्वायर हो तो उसको हम a² b² ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -1, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, -1² अपॉन √3² लिख सकता हूँ, देन -1। ओके, सो लेट अस सॉल्व। -1² इज 1, अरे -1 इंटू -1 +1, √3 इंटू √3। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर √3 ऐसा कोई नंबर है, स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। चैप्टर 1 में अपन ने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 3, √3 का स्क्वायर है ना, -1। तो अगेन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 3/3 -1 कटा 1 टाइम्स, सो p -1/√3 इज इक्वल टू 1 - 1, यानी किसके बराबर आया, 0। ओके, 0 आ गया, मतलब दिस इज द करेक्ट वैल्यू। ओके, लेट अस फाइंड p 2/√3। p 2/√3। ओके, सो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2/√3 रख देंगे, 2/√3 का स्क्वायर -1। ओके बच्चों, नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज 2² ऐसा लिख सकते हैं ना हम। अब इसके पहले वाले पार्ट में भी तो ऐसे ही किया है हमने, देखो। सो p 2/√3, 2² is 4, √3² is 3। अगेन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, 3 तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, 1 इंटू 4 4, 1 यहाँ पर भी 1 बचा, 1 इंटू 1 1, तो 4 - 1, 4 - 1 इज 3। ओके, देखो यहाँ पर क्या मिला, 3। क्या मिलना चाहिए था, 0, पर 0 नहीं मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, 3। इट मीन्स 2/3 इज द इनकरेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, लेट अस मूव टू द 8th पार्ट।